Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So we are tackling your queries one by one, and lot of videos I have already made, and they are placed in a playlist. Playlist link is available in description box. Watch these videos before applying. Now, in some of the states, this time vacancies are very low. If we talk of some southern states like Karnataka, maybe some other states, now these candidates are asking, sir, from where we should apply. Normally, my answer is you should apply from your own state. And when vacancies are very, very low, this was the situation few years ago for the Bihar candidates and some other candidates where vacancies were even nil. So then we were used to tell that if you have to apply and the vacancies are very less in your state, then what should be basic criteria for choosing the other state? First thing, try to choose a state where you can comfortably live. Because one thing is getting a job, second thing is sustaining after the job. So, one thing you must always keep in mind, what are the food habits, what are the accommodations available there, and whether you will be able to settle yourself in that climate and environment. This is one. Second, how far it is from your native place. Because once you are employed, and in State Bank of India, there is no inter-circle transfer or interstate transfer. So you will be working in that state for fairly long period of time. Because as of now, there is no transfer possibility. Future, what will happen, nobody knows. But as of date, if you join a particular state or circle, you will remain there for a very, very long period of time or maybe your lifetime. So, what is the comfortable state where you can settle? That should be your second criteria. Third hurdle is LPT. Because if you are applying for another state, whether you know the language of that state, if you are not knowing whether you will be able to learn this in the given time, because these days LPT is becoming a serious issue. Last year, many Andhra candidates, those applied for Gujarat, qualified from Gujarat, but they were struck in the LPT. Many of them represented also, but nothing happened thereafter. Because LPT is slowly and steadily becoming a very serious aspect as far as joining is concerned. So you have to be very careful in choosing the state from where you should apply. Because when there are low vacancies in your state, so naturally you are confused whether to try your luck within your state where cutoff may be high, where competition may be fierce, or second is go to another state where you may feel that the chances of your selection is high. It may not be the actual case, but still some people feel if vacancies are more, my chances are high, and it has also happened. Sometime a person applies from another state, and when result comes, the cutoff in his own state is lesser than the state from which he applied. So cutoffs are unpredictable. Merely on the number of vacancies, you cannot take a decision whether cutoff will be high in a particular state or cutoff will be low in a particular state. And last year cutoffs should not be taken as a benchmark because there is no correlation between last year cutoff with this year cutoff. Okay, so these things you should consider and then take your informed डिसीजन. गॉड ब्लेस यू ऑल. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. एसबीआई जूनियर एसोसिएट को लेके जो आपकी क्वेरीज हैं उसके हम निरंतर वीडियोस बना रहे हैं. उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है. प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया. इन वीडियोस को आप ध्यान से देखें अप्लाई करने से पहले. अब एक प्रश्न खासकर जो साउथर्न स्टेट्स हैं उनके कैंडिडेट्स का कि सर मेरे स्टेट में बहुत कम वैकेंसीज हैं. जैसे कर्नाटका के कैंडिडेट हैं या अदर स्टेट्स के भी कैंडिडेट हैं जहाँ वैकेंसीज कम है, तो मैं क्या करूं? क्या मैं अपने स्टेट से अप्लाई करूं या अन्य स्टेट से अप्लाई करूं, और अन्य से करूं तो कौन से करूं? देखो, मेरा मानना यह है कि जहां तक संभव है आपको अपने स्टेट से अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन होना एक चीज़ है और फिर उस जॉब को निभाना दूसरी चीज़ है. तो
इसके अंदर क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इंटर सर्कल इंटर स्टेट ट्रांसफ़र नहीं है, तो जहाँ के लिए भी आप सेलेक्ट होंगे लगभग आपको पूरी लाइफ या बहुत लंबे पीरियड तक वहाँ पर काम करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी वहाँ पर कोई इंटर स्टेट या इंटर सर्कल ट्रांसफ़र नहीं है। आने वाले दिनों में क्या होता है अभी नहीं कहा जा सकता, मगर ये आप मान के चलिए कि बहुत लंबे पीरियड के लिए आपको उस स्टेट या उस सर्कल में काम करना पड़ेगा। तो हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए? सबसे पहला चीज़ ये है कि जो वहाँ का खाना पीना रहना सहना है, क्या उसमें मैं अपने आप को एडजस्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये पहला क्राइटेरिया होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये भी हो सकता है कि आपके स्टेट से उसका डिस्टेंस कितना है, क्योंकि जो आपका नेटिव प्लेस है वहाँ आपको नेचुरली आना पड़ेगा, फ्रिक्वेंटली भी आना पड़ेगा, क्योंकि आपके सब रिलेटिव सारे चीज़ें आपके नेटिव स्टेट में ही होंगी। तो वो वहाँ से आने जाने का क्या जरिया है उस स्टेट से, और वो कितना अफोर्डेबल है, वो एक क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया आपका ये हो सकता है कि जो वहाँ की एलपीटी है, जो बहुत बड़ा हर्डल है, क्या वो लैंग्वेज आपको आती है? नहीं आती तो क्या आप सीख लेंगे? क्या आप सीख के उस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे? क्योंकि पिछली बार काफ़ी आंध्रा के कैंडिडेट जो एसबीआई के अंदर गुजरात से सिलेक्ट हुए थे, वो एलपीटी स्टेज पे जाकर अटक गए थे। उन्होंने रिप्रेजेंट भी किया मगर कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि एलपीटी धीरे धीरे सीरियस अफेयर होता जा रहा है और काफ़ी स्टेट्स के अंदर एलपीटी में काफ़ी कैंडिडेट प्लक हो रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना ऐसे ही है हो जाएगा, ये गलत बात है। सच्चाई ये है कि एलपीटी एक सीरियस अफेयर है, तो एलपीटी के भी आपको कंसिडर करना है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। तो जहाँ तक संभव है आप अपने स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कट ऑफ को क्राइटेरिया बनाते हैं, वहाँ वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ कट ऑफ कम हो जाएगा, यहाँ वैकेंसी कम है या कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि इसका कट ऑफ से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ऐसा भी देखने में आया है कि कट ऑफ का पिछले साल के कट ऑफ से कोई रिलेशन नहीं है। इसी तरह कौन से स्टेट में क्या कट ऑफ चला जाएगा ये कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और ऐसा भी कई कैंडिडेट्स के साथ हुआ है जिन्होंने अपना स्टेट छोड़ के दूसरा स्टेट अप्लाई किया था, तो जिस स्टेट में अप्लाई किया था वहाँ कट ऑफ हाई चला गया और उनके अपने स्टेट में कट ऑफ लो था, और वो अगर अपने स्टेट से अप्लाई करते तो शायद उनकी सिलेक्शन हो जाती। इसलिए कट ऑफ्स को बेसिस बना के स्टेट का चुनाव करना ठीक नहीं है, मेरा मानना ये है। इसलिए आपको जो ज़्यादा क्राइटेरिया लगाना चाहिए वो ये है कि क्या वहाँ उस स्टेट में रह सकते हैं, क्या वहाँ का खाना पीना जलवायु आपको सूट करेगी, क्या आप वहाँ से फ्रीक्वेंटली अपने घर आ जाने के लिए सक्षम होंगे, तो ये, और क्या वहाँ की एलपीटी आप पास कर पाएंगे, ये सारे फैक्टर आपको ध्यान में रखने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी हर व्यक्ति के अपने अपने विचार हैं, अपने हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने मुझसे ये प्रश्न किया कि सर बताओ मैं कौन से स्टेट से अप्लाई करूं, तो मैं आपको ब्रॉडर एस्पेक्ट बता रहा हूं, इनको ध्यान में रखकर आप डिसीजन ले सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।